गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स। बेसिकली स्टार्ट करेंगे वर्ड्स, एंड वर्ड्स के टाइप होते हैं टू। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल वर्ड एंड सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट टेट्राहेड्रल वर्ड। बेसिकली वर्ड होता क्या है? वर्ड जो आपके लैटिस में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, the space which is present in between spheres. Spheres may be atom, molecule or ions. Okay, what is the condition of tetrahedral words? Let's see. These are created by four atoms, and it is unoccupied space of lattice which is present at the center of four atoms or sphere. Tetrahedral words are created when first layer gap is packed or covered in second layer. Okay, packed or covered in second layer. Now, how many tetrahedral words present in your lattice? It can be calculated with the help of this formula. Formula is written here. Number of tetra words is equal to 2 into number of atoms are used. जितने एटम आपने यूज़ कर रखे हैं उस लैटिस को क्रिएट करने को, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन वी गेट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स. ओके, देन वी गेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स. नाउ सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड. These are created with the help of 6 atoms. कितने atoms? 6 atoms. First layer unoccupied space is continue in second layer and covered in third layer is called octahedral words. 6 atoms, 6 molecules, 6 ions means the space which is present in between 6 spheres is called octahedral words. Now, how many words are created in your lattice? It can be calculated with the help of formula. Number of octaword is equal to number of atoms. जितने molecules, atoms, ions यूज करोगे उतने ही octawords बनेंगे. Means number of octawords are always equal to number of atoms or molecules or ions present in lattice. Okay. Now, ऑक्टावर्ड रेडियस मीन्स जो ऑक्टावर्ड आप क्रिएट आपने लैटिस में छोड़ रखा है या लैटिस में बन रखा है, उसकी भी एक रेडियस होगी. उसकी रेडियस क्या होगी? 0.414 कैपिटल आर. कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम्स आर स्फीयर. रेडियस ऑफ एटम्स आर sphere. Okay, similarly tetravoid radius, what is tetravoid radius? Sorry, tetravoid radius is equal to 0.225 capital R. Okay, now some important points are written in form of note. Generally words are occupied by cations. क्या बोला? जो words होंगे, वैकेंसीज होंगी, वो खाली जगह जो होंगे उनमें बेसिकली जनरली कौन आते हैं? कैटायंस. कौन आते हैं? कैटायंस. क्या लिखा? जनरली वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय कैटायंस. जनरली बोला, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम. If lattice is CCP, then word is octa. Very important. आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा CCP packing is here, then calculate size of the words and number of words. CCP means word should be octa. HCP, then word should be tetra. Okay, these are the facts about
voids, size of voids, how many voids, what is the voids, type of void. These are the points and very important point voids, and many questions numericals also observe in examination on the basis of voids. Okay, now come to the next point, and the next point is radius ratio and coordination number. Radius ratio and coordination number. If radius ratio is less than 0.155 then coordination number is 2. सॉरी, ये डेटा आपके टेबल में नहीं था, जो टेबल आपके नोट्स में है उसमें ये चीज़ नहीं है। 0.155 से कम जब होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 and structure is linear. Second point, CAF2 is an example of coordination number 4 and its structure is commonly known as फ्लोराइट स्ट्रक्चर। CAF2 के स्ट्रक्चर को किस स्ट्रक्चर से जानते हैं? फ्लोराइट स्ट्रक्चर। ओके, therefore A to B CAF2 is an example of AB2. Okay, 1 cation, 2 anion, calcium 1, fluoride 2. Formula is CAB2. But A to B, it is just opposite to AB2. Therefore, A to B structure or arrangement is commonly known as anti-fluorite structure. AB2 fluorite structure, A2B anti-fluorite structure, because cation anion ratio is 2:1, but in fluorite structure cation anion ratio is 1:2. Okay, now next particular example, ZnS zinc sulfide structure or arrangement commonly known as pyrite structure. पाइराइट स्ट्रक्चर ZnS के स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली आप कहते हो पाइराइट स्ट्रक्चर। क्या कहते हो? पाइराइट स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ NaCl अरेंजमेंट 1 sodium ion surrounded by 6 Cl minus chloride, 1 sodium cation surrounded by 6 chloride ion, and similarly NCl minus surrounded by 6 Na plus. Now sodium plus present at the edge of unit cell. ये फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl की लैटिस को आप देखोगे तो कॉर्नर्स पे जो पोजीशंस होती है, आप ये ना सोचना कि हर कॉर्नर पे आपके कैटायन होंगे एनायन होंगे। डिपेंड करता है कि एनायन है कि कैटायन है। NaCl के केस में Na प्लस प्रेजेंट एट कहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये NCERT जब आप पढ़ते रहोगे, NCERT के सारे जो विजुअल पिक्चर्स हैं उनको आप केयर करोगे तो 3D पिक्चर देखने में समझने में ईजी होगी। ओके, मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। ये देखो, दिस इज द पोजीशन ऑफ सोडियम। सोडियम कहाँ पे होगा? एज पे होगा। सोडियम कहाँ पे होगा? एज पे क्लिक रखा है। सोडियम प्लस प्रेजेंट एट द एज ऑफ यूनिट सेल एंड Cl माइनस प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज ईच फेसेस। क्लोराइड कहाँ पे होगा? क्लोराइड प्रेजेंट कहाँ पे है भाई? क्लोराइड देखिए यहाँ पे लगा रखा है, अपने कॉर्नर्स पे लगा देंगे और साथ में कहाँ लगाएंगे? फेस पे। साथ में कहाँ लगाएंगे? फेस पे। तो ये पोजीशन जो आपको बना रहा हो, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ NaCl। सोडियम प्लस प्रेजेंट एट द एज and Cl minus present at the corners as well as each faces. Next, in case of cesium chloride, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का एग्जाम्पल बताएं आप। सीजियम क्लोराइड है तो सीजियम आयन प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द यूनिट सेल
and chloride ion is present at each corners. Okay, ratio is 1:8, means one cation surrounded by 8 anion. Similarly, 8 anion also surrounded by 8 cations. Now come to the next question. Okay, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग. वो क्वेश्चन बेस्ड होगा आपके वर्ड्स बेस पे. कहता क्या है, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट. दो एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म होता है. एक्स एंड वाई. क्या है? एक्स एंड वाई. आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो. एलिमेंट वाई ऑक्यूपाई सीसीपी. आ गया, देखो सीसीपी. सीसीपी आ गया. थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ये देखो सीसीपी बोला तो ऑक्टावर्ड बनेगा. इफ सीसीपी इज देयर देन वर्ड शुड बी ऑक्टा. ओके, नाउ फिर कहता है ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई. एलिमेंट वाई ऑक्यूपाई सीसीपी कॉर्नर्स एंड एलिमेंट एक्स, दिस इज द एक्स, ऑक्यूपाई ऑक्टावर्ड्स. ओके, अब सपोज कर लो कि वाई एलिमेंट्स कितने हैं, एन. सपोज क्या है, लेट अस सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट वाई इज एन. एलिमेंट एन है तो ऑक्टावर्ड के नंबर्स क्या होंगे, अभी थोड़ी पहले बोला था ऑक्टावर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट लैटिस. तो नंबर ऑफ ऑक्टावर्ड शुड आल्सो बी एन. ओके, अब आप देखो एक्स के नंबर भी एन है, वाई के भी नंबर एन है. एक्स वाई का रेशियो निकाल लिया आपने, 1:1 आ गया. तो फार्मूला क्या हो गया, एक्स वाई. ओके, फार्मूला क्या हो गया, एक्स वाई. ये क्वेश्चन आपने किस बेसिस पे किया, ऑक्टावर्ड के बेसिस पे कर रखा है. नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन हियर, सॉरी. ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी. एलिमेंट ए क्रिएट सीसीपी. फिर वही बात आ गई, सीसीपी है, ऑक्टावर्ड बनना है. एंड प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स एलिमेंट बी ऑक्यूपाइड 2/3 ऑक्टावर्ड. कंडीशन है सारे ऑक्टावर्ड्स नहीं ऑक्यूपाइड हैं, ओनली 2/3, मीन्स 2/3 आर ऑक्यूपाइड एंड अदर्स आर अनऑक्यूपाइड. नाउ स्टार्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू एन. सपोज किया आपने. ऑक्टावर्ड आल्सो इक्वल टू एन, ये कंडीशन है. इफ एलिमेंट नंबर इज एन देन वर्ड इज ऑक्टावर्ड इज आल्सो इक्वल टू एन. दोनों आपस में इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ बी एलिमेंट, नंबर ऑफ बी एलिमेंट निकालना है आपने. ओके, वो कितना होगा, नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना होगा, 2/3. किसका 2/3 होगा, जितना आपने ले रखा है वाइड. ऑक्टावर्ड, ऑक्टावर्ड क्या है एन, तो उसका 2/3 होगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसने बोल रखा है 2/3 ऑक्यूपाइड. ए एंड बी एलिमेंट ऑक्यूपाइड सीसीपी एंड कॉर्नर एलिमेंट बी. एलिमेंट बी देखो लिख रखा है प्रेजेंट एट द 2/3 ऑफ ऑक्टावर्ड. ए के नंबर आ गए, बी के नंबर आ गए, दोनों का आपने रेशियो ले लिया. ए इज टू बी, एन इज टू 2/3 एन एंड 1:2. सॉल्व किया तो क्या आ गया, B2A3. फार्मूला इज B2A3. ओके, बहुत सिंपल है, आप सिंपली करते चले जाओगे, आपका हो जाएगा. ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी. थर्ड क्वेश्चन. A compound is formed by element A and B. Element B create lattice and element A cation occupy 2/3 of tetrahedral void. ओके, अभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करता है. तो सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एन. टेट्रावर्ड 2 टाइम्स हो गया 2n. ठीक, अभी कहता है ए ऑक्यूपाई करेगा या बी ऑक्यूपाई करेगा. मेंटेन ऑक्यूपाई 2/3. 2/3 आपने ले लिया, क्या ले रखा है 2/3. तो अब 2/3 यहाँ पे आपने बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 मीन्स कि ये आपने बी कर लिया, ये आपने ए कर लिया. ये करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स में भी. 2n इंटू 2/3 4 आएगा. फिर आप रेशियो ले लोगे A is to B, तो फार्मूला बन जाएगा आपका
रेशियो आप लोगे तो बी का हो गया या ए 4n/3 4n/3 इज टू एन, यानी एन कैंसिल हो गया, 4:3 किसके रेशियो आ गया, ए इज टू बी आ गया 4:3। 4:3 मतलब ए 4 होगा तो फार्मूला क्या होगा, A4B3। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज द type of words and numerical based on type of words. Okay, thank you.